So in this video, we are going to learn about soaps and detergents. Now, we will begin our video with the explanation of soaps. So what is soap? So in order to understand soap, first let us understand what happens when if you take one beaker. Okay, you have took one beaker. Okay, for example, this is our beaker, and we took some water in this. Okay, some water molecules in this, and after taking water molecules from this, we have added some of the oil particles also to this, or oils to this. So what you can observe is that, so in your beaker, so there will be formation of what, two different layers. Okay, there will be two different layers. Okay, it comprises of two different layers. So there will be a water in downside, so there will be water layer, and on the above you can find oil layer. तो आपको दो लेयर्स देखने के लिए मिलेगा, एक वाटर लेयर होगा और एक ऑयल लेयर होगा. जब भी ऑयल को डिजोल्व करोगे पानी में तो दो दो लेयर आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो नीचे की तरफ पानी होगा और ऊपर की तरफ ऑयल हो सकता है. तो अब हमें इसको हम बोलते हैं इमल्शंस. ओके, इमल्शंस. ओके, व्हाट इज इमल्शन? Okay, whenever emulsion means, okay, whenever you dissolve oil in water, it forms two different distinct layers. This mixture is known as emulsions. Okay, oil in water, if you dissolve, so it will form two distinct layers separating them. Okay, so this is known as emulsion. Two distinct layers, this is known as what? Emulsion. Okay, हमने इमल्शन बना दिया. हमने क्या किया, ऑयल को, थोड़ा सा ऑयल को हमने पानी में डिजोल्व कर दिया और हमारा जो बनता है दो लेयर्स बनते हैं, इसको हम बोलते हैं इमल्शंस. और अब हम बात करते हैं सोप्स के बारे में. तो सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर व्हाट, इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं सोप्स के. ओके, so what is the definition of soaps? These are what? Long chain. ये लॉन्ग चेन होते हैं फैटी एसिड्स के. ओके, फैटी एसिड्स एट वन एंड, एक एंड पे फैटी एसिड्स होना चाहिए, एंड सोडियम आयोन एट अदर एंड. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप सोप को समझना चाहते हो तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है. ओके, सो लाइक दैट द लॉन्ग मॉलिक्यूल इज देयर. ओके, सो लाइक दैट लॉन्ग मॉलिक्यूल इज देयर. तो इस एंड पे मैंने लगा दिया सोडियम को, और एक एंड पे है COOH जो कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है. कौन सा फंक्शनल ग्रुप? इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप. और ये है सोडियम वाला. ठीक है, दिस इज सोडियम. ओके, यू विल राइट हियर सोडियम. So sodium is at present at one end and the carboxylic acid is present at other end. So ये जो बीच में है ये वाला लॉन्ग चेन है. लॉन्ग चेन किसका? फैटी एसिड्स वाला लॉन्ग चेन. ठीक है, सो दिस इज फैटी एसिड्स ऑफ लॉन्ग चेन. So sodium at one end and sodium is at one end and carboxylic acid is at other end. So those substances are called as soaps. Now we have understood this now about the soaps. Okay, so now you know that सोडियम किस में डिजोल्व हो सकता है? सोडियम वाटर में डिजोल्व हो सकता है इजीली. सो सोडियम कैन डिजोल्व इन वाटर वेरी इजीली. और उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप ऑयल्स में अच्छी तरह से डिजोल्व हो सकता है. तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए कि सोडियम वाटर में आराम से डिजोल्व हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑयल्स में ज्यादा डिजोल्व हो सकता है. तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग लिखने के लिए ट्राई करेंगे कि
किस तरह से सोप मॉलिक्यूल्स डर्ट को क्लीन करते हैं. सो नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ soap soaps can clean dirt. Okay, soaps can clean dirt. This is the question. Okay, see, if we took water for washing the cloth, what we took water for washing the clothes. ठीक है, so we took some water for washing the cloth. So this is our water. ठीक है, दिस इज अवर वाटर मॉलिक्यूल्स. तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर. ओके, सो व्हाट वी डिड, वी एडेड. ओके, सो this water molecule. Okay, so what we did, we added one cloth to this. Okay, we are adding one cloth to this. For example, this cloth material contains some dirt in it. Okay, so this we dissolved in this water now. So there is a dirt, okay, in this cloth. So dirt has the property. So dirt has one property. dirt की एक property होती है कि वह oily in nature होता है. oily in nature होता है. ठीक है, oily in nature होता है. इसकी वजह से डर्ट ऑयल में आसानी से मिक्स हो सकता है. पानी में मिक्स नहीं होगा. डर्ट किस में मिक्स होगा? ऑयल में मिक्स होगा. ये बात आपको ध्यान में देना है. ठीक है, सो देयरफॉर नाउ सोप की भी वही प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं भी दिखाता हूँ. यहाँ पर एक डर्ट है. तो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर डर्ट. ओके, दिस इज डर्ट मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, ये जो यहाँ पर ये एंड पर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एंड होता है, COOH वाला होता है, और ये सोडियम वाला एंड होता है. ठीक है, तो इसी तरीके से डर्ट को अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एंड, सोडियम वाला एंड बाहर की तरफ. ठीक है, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एंड होता है मिडल में और सोडियम एंड होता है, ठीक है, बाहर की तरफ. सो देयरफॉर इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एंड एक साइड पे और दूसरे एंड पे सोडियम होता है. सोडियम बाहर की तरफ है. मतलब यहाँ पे अगर आप बीकर में, ओके, सो दिस इज अवर बीकर. सो यू टुक this is water. Okay, this is water is present. So this is oil. Okay, this is what? Oil. So oil. Okay, so when you dissolve oil, so this is dirt. सो एंड वन जो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ऑयल की तरह बिहेव करेगा, और सोडियम की प्रॉपर्टी होती है कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा. सो देयरफॉर नाउ इट इज ऑल द पार्टिकल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के सभी पार्टिकल्स मिक्स होते हैं डर्ट में, और सोडियम मिक्स होता है पानी में. ओके, देयरफॉर ये जब पानी में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये डर्ट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगा और इस डर्ट को रिंस करने पे क्लीन कर देगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ cleaning of dirt in water. Okay, so this is about how the dirt is cleaned. फिर से बोलता हूं, अब एक डर्ट है. ये डर्ट को कौन सा वाला पार्ट अटैच है? COOH वाला पार्ट अटैच है. ठीक है, दिस इज डर्ट. ओके, दिस इज डर्ट, तो इसको COOH वाला पार्ट अटैच है. ठीक है, सो और बाहर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोडियम को अटैच है. ठीक है, सो दिस हैपेंस. सो दिस हेल्प्स इन रिंसिंग द क्लॉथ. ओके, रिंसिंग द क्लॉथ will help to clean the clothes. Okay, clean the clothes. Okay, so the COOH will attach to the dirt very firmly and it will bind it with it, and it can remove the dirt very easily. Okay, when soap is used. What is soap? It is a long chain of what? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक एंड में सोडियम होता है और एक एंड में COOH होता है. तो यही हमने एक्सप्लेन किया है. अब हम बात करते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में. व्हाई डिटर्जेंट्स आर यूज्ड? ओके, आर यूज्ड. यहाँ पे मेन रीजन आपको याद रखना है कि डिटर्जेंट्स तब यूज करते हैं जब आपके, ठीक है, आपका जो वाटर हो वो हार्ड वाटर हो. ठीक है, हार्ड वाटर हो. व्हाट इज हार्ड वाटर? जिस वाटर में इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो इसको बोलते हैं हम लोग हार्ड वाटर. ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं
उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। सो ये हार्ड वाटर में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम साल्ट्स। ठीक है, मैग्नीशियम साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। विच साल्ट्स विल कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर? सो दीज आर द हार्ड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स। ठीक है, अब आपके डिटर्जेंट्स में व्हाट इज डिटर्जेंट्स? ठीक है, व्हाट इज डिटर्जेंट्स? These are also long chain of fatty acids, okay, which contains, okay, यहाँ पर ये क्या कंटेन करता है? सो दिस कंटेन्स एमोनियम। ठीक है, एमोनियम, एमोनियम आपने सुना है NH4। ठीक है, एमोनियम साल्ट्स होता है या सल्फोनेट साल्ट्स होते हैं? कौन से साल्ट्स? एमोनियम साल्ट्स। ठीक है, एमोनियम साल्ट्स, साल्ट्स या सल्फोनेट साल्ट्स। ठीक है, एट वन एंड, और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं डिटर्जेंट्स में। सो डिटर्जेंट्स का मतलब है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, जिसमें एक एंड में होता है एमोनियम और सल्फोनेट साल्ट्स, दूसरे एंड में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी लॉन्ग चेन ही होते हैं, मतलब यहाँ पे साल्ट्स का डिफरेंस होता है क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो ये इंसॉल्युबल साल्ट्स को प्रेसिपिटेट बना देंगे, या इंसॉल्युबल साल्ट्स को प्रेसिपिटेट कर देंगे। सो देयरफॉर यू कैन remove the dirt by using detergents, okay, so which cannot be removed by using soaps. So detergents कहाँ पे यूज करते हैं? so ये detergents यूज करते हैं for cleaning clothes, okay, detergents यूज करते हैं cleaning cloth के लिए, clothes clean करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Thanks for watching this video and hope you have understood all the topic very well. So